Assalamu alaikum, class 7th students. As you know, I have given you the introduction of natural numbers, whole numbers, and then in our previous lecture we discussed the classification of whole numbers, and whole numbers are classified as even numbers, odd numbers, prime numbers, and composite numbers. Today we are going to start integers. Now, this is the name of our topic: integers. Integers. What are integers? Let us discuss. You know whole numbers. So integers definition is all the natural numbers. As you know, natural numbers are from 1. All the natural numbers and their negatives and their negatives negatives including 0, including 0 are called integers, are called integers. So as you know, 1, for example, 1 is a natural number. I will write some natural numbers: 1, 2, 3, 4, 5, and dash dash. These are the natural numbers. And what are their negatives? Negatives are -1, -2, -3, -4, -5, dash 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 dash, including 0. अब इन सारे नेचुरल नंबर्स और इनके नेगेटिव्स में 0 को भी जब इंक्लूड करेंगे तो दिस इज द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स. अब इन इंटीजर्स को हम कैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं? सबसे पहले आपने कुछ डॉट्स को पुट करना है. Then after, you have to start from any negative integer. Let us start from -4. -4, then as you are moving towards the right of -4, you will get its greater number. So -3, that is -2, -1, then it is 0, 1, 2, 3, 4, and dash 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 dash. लिसन माय डियर, मैंने यहां पर जो एग्जांपल आपको दिया है, मैंने -4 से स्टार्ट किया. जरूरी नहीं है कि आप -4 से ही स्टार्ट करें. नो, यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम -3 एज और -2 और -1, बट यू आर नॉट अलाउड टू स्टार्ट इट फ्रॉम 0. या -4 से नहीं, -5 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, जहां से आप नेगेटिव इंटीजर को स्टार्ट करेंगे वहीं पर इसका पॉजिटिव भी एंड करना, ताकि आपको पता चले दीज आर द नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, these are their negatives -1, -2, -3, -4, and including 0. All these are called these integers. अब -4 से पहले मैंने कुछ डॉट्स बनाए हैं. इसका मतलब है कि -4 से भी पहले कुछ इंटीजर्स हैं और +4 के बाद भी कुछ इंटीजर्स हैं. नाउ हाउ मेनी इंटीजर्स आर बिफोर -4? वी डोंट नो. Infinite number of integers are before -4, and infinite number of integers are also after +4, because every integer has its predecessor, and every integer has its successor also. Successor. What does predecessor means? Predecessor means one less, and successor means one more. One more. If we think -4 is the least integer, but -4 has its predecessor, इससे छोटा एक इंटीजर जो कम है वो -5 है. इसी तरह अगर हम -5 को मानेंगे सबसे छोटा, तो उसका भी प्रेडिसेसर है -6. इसी तरह हर एक इंटीजर का अपना अपना प्रेडिसेसर है. आइए अब देखते हैं इसको. अगर हम मानेंगे +4 सबसे बड़ा इंटीजर है, बट एवरी इंटीजर हैज इट सक्सेसर. 4 का सक्सेसर आता है 5, 5 का आता है 6, 6 का आता है 7. तो इस तरह से हम कह सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स, वेदर दे आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव. दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटीजर्स. इज इट क्लियर? तो ये हो गए इंटीजर्स. जब आपको डिफाइन करना है इंटीजर, आपने कहना है
all the natural numbers and their negatives including 0 are called integers, and the example is 1 2 3 4 5। ये मैंने पॉजिटिव इंटीजर बता दिया यानी कि नेचुरल नंबर्स। इन्हीं के नेगेटिव्स आते हैं -1 -2 -3 -4 -5 इंक्लूडिंग 0। बट हाउ कैन यू एक्सप्रेस दिस एग्जाम्पल? फर्स्ट यू हैव टू पुट सम डॉट्स, कामा करके फिर कहीं से भी आप नेगेटिव इंटीजर स्टार्ट करिए, कोई भी नेगेटिव इंटीजर, लेकिन आपको राइट साइड की तरफ जाना है तो फिर उस नेगेटिव इंटीजर का बड़ा बताना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, आगे जाके जहां से आपने नेगेटिव स्टार्ट किया वहीं पर उसका पॉजिटिव एंड भी करना। तो इस तरह से बन जाती है एग्जाम्पल ऑफ द इंटीजर्स। अब क्वेश्चन है व्हाई यू हैव पुट डॉट्स बिफोर -4 and why you have put dots after +4? So its reason is every integer has its predecessor as well as successor. What does predecessor means? Predecessor means one less and successor means one more. This is the example or a definition of integers. Is it clear? Now we have to operate these integers. Another topic is operation of the इंटीजर्स। अब इन इंटीजर्स को हम कैसे ऑपरेट करेंगे? तो ऑपरेशन आप जानते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। देयर आर फोर बेसिक ऑपरेशंस इन अर्थमेटिक्स। वो फोर बेसिक ऑपरेशंस कौन से हैं? नंबर 1 है इसका एडिशन। द फर्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन। सेकंड ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन, this is the second operation, and third operation is multiplication। Fourth operation is a division। These are the operations of integers, and we have some operators here। ऑपरेटर्स मतलब हो गए इन ऑपरेशंस के साइंस, ऑपरेटर्स। The first operator is plus, second is minus, third is into, and fourth is divide. These are the signs of these operations. We call these operators. Is it clear? How will we operate these integers? The first thing is, if you want to add the integers, addition of the integers. First operation is addition of the integers। इन इंटीजर्स का एडिशन कैसे किया जाता है? नंबर 1 पॉइंट इज, पॉइंट नंबर 1, इफ अ पॉजिटिव इंटीजर and a negative integer, positive integer and negative integer, when are added, जब इनको ऐड करते हैं, किस किस को? पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को जब हम ऐड करेंगे, व्हाट हैपेंस देयर? यू जस्ट सी दिस। पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर का एडिशन हमें करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज आई विल टेक +5, दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एंड आई हैव टू ऐड इट नेगेटिव इंटीजर से, आई हैव टू ऐड इट -3। व्हाट विल यू डू? पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर का एडिशन हमेशा डिफरेंस निकालनी होती है। इनके एडिशन करने का तरीका है, आपको इनकी डिफरेंस निकालनी है। तो इसका मतलब है 5 को माइनस करना है 3, तो रिजल्ट आएगा 2, और इस रिजल्ट में वही साइन रहता है जो बड़े इंटीजर की होती है। बड़ा इंटीजर इसमें है ना +5, एंड रिजल्ट इज +2। इसी तरह अब अगर यही हम करेंगे, आपको करना है -5 एंड यू हैव टू ऐड इट +3। -5 को ऐड करना है +3, तो इनका एडिशन क्या बनेगा? मैंने कहा ना, जब एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और एक नेगेटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, इनको ऐड करना है। असल में आपको इनकी डिफरेंस चेक करनी है। -5 को प्लस करेंगे 3, तो 5 को माइनस करने हैं 3, 5 - 3 is 2। साइन विल बी ऑफ अ लार्जर और ग्रेटर इंटीजर। बड़ा इंटीजर इनमें ये है तो इसका साइन नेगेटिव है, तो ये रिजल्ट भी नेगेटिव ही आएगा।
समझ गए ना। अब यहां पर अगर सेम इंटीजर होते हैं +5, दिस इज टू बी एडेड टू -5, +5 को माइनस करने हैं 5। मैंने कहा ना जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा आपको माइनस करना होता है। 5 को जब माइनस करेंगे 5 तो रिजल्ट आएगा 0। अब बताइए इसमें ये क्या ये 0 बड़ा है, सॉरी क्या ये 0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मैंने आपको बताया है कि बड़े इंटीजर का साइन रखना होता है। इसमें से बड़ा इंटीजर कौन है, कोई भी नहीं, क्योंकि ये भी 5 है ये भी 5 है, इसलिए इसमें कोई साइन नहीं रहेगा। यही वजह है कि हम कहते हैं 0 ना नेगेटिव होता है और ना ये पॉजिटिव होता है। दिस इज अबाउट द एडिशन ऑफ द इंटीजर्स। इज इट क्लियर। अब आगे हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर्स। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर्स क्या होता है, देखो बेटा सबसे पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर्स हम लिखेंगे ये सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर्स। ये इंटीजर्स को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर्स में देखना, यही मैं एग्जांपल दूंगा आपको। फॉर एग्जांपल +5 को माइनस करना है +3, ये इजी सब्ट्रैक्शन है। तो इसका मतलब है जब दोनों पॉजिटिव इंटीजर होंगे और आपको माइनस करना, यू हैव टू सिंपली सब्ट्रैक्ट इट। +5 को माइनस करने हैं 3, द रिजल्ट इज 2। इज इट क्लियर। अब इसी को दूसरी तरीके से लिखेंगे। नाउ इफ बोथ द टू इंटीजर्स आर नेगेटिव, सॉरी one is positive and another is negative. Suppose if you have a +5 and you have to subtract -3 from it. If one is positive and another is negative and you have to subtract it, how will you subtract that? This time you have to say +5 minus into minus is +3, +5 and +3 becomes +8. This is the answer. If larger is negative and smaller is positive, what will happen here? In another example you will see -5, you have to subtract +3 from it. आपने कैसे करना है, it is -5, शाबाश, माइनस इंटू प्लस इज -3। जब दो नेगेटिव इंटीजर आएंगे बेसिकली यू आर गोइंग टू ऐड देम। -5 -3 becomes -8. This is the subtraction of integers. If you have one positive integer and another positive integer, you have to subtract them. Simply you have to take their difference. If one is positive and another is negative, and you have to subtract them, and this is the example how you will subtract, where the first one is positive and second one is negative. Now in third example, if first one is negative and second one is positive, how will you subtract them? As you know, here you are making the addition and sign remains positive. Here also you have to make the addition, but sign will remain negative. Is it clear? If both the two are negative, like this, -5 and -3, what is the answer now? This is -5, okay, minus into minus becomes +3. Here you have to make the difference because one is positive negative, another is positive. -5 and 3 is basically 2. 5 minus 3 is 2, but sign will remain of the negative integer, and -2 is its answer. These were the first two operations of the integers. The operations were addition and subtraction. In the next video we will check the another two operations, that is multiplication and division. Till then, Allah Hafiz.